हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। क्लास 11वीं CBSE NCERT सोशोलॉजी है, यानी समाज शास्त्र के हमारा चैप्टर जो आया है प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग, ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है पॉइंट व्यू, यानी पॉइंट व्यू का अर्थ होता है कि आपके जो चैप्टर के सिलेबस हैं उसके अंतर्गत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस की जाएगी, वो भी आसान शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि आपको इसको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में बताने की कोशिश किया जाएगा, जो काफ़ी महत्व रखेगा। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऊपर से पॉइंट व्यू रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये सब पॉइंट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर टर्म concept and their use in a sociology. That's an important chapter here, class 11 CBSE NCERT sociology here. You know that there's an important term concept and their use in a sociology. And the next point arrive here, that's important. And point here, social control. Social control, that's important. Social control refer to the various means used by the society to bring its restraint of unruly members back into the line. That's important here. And it is a social process, technique and strategy by which is the behaviors of individual or a group are regulated. That's important. It is a social process, techniques and strategies by which there is a behavior of individuals or group are regulated. That's important. It can be the use of force of regulate their behavior of the individuals or enforcement of value in the individual to the maintain order in society. That's important here. It can be the use of force to regulate the behavior of the individuals as a enforcement of value in the individual, the maintenance order in a society. That's important. The next point here, means of social control. The means of social control here, that's mean a social control may be two type, informal or formal. That's important here. Social control may be of informal and formal. First of all here arrive formal means. The formal means is when there are codified, systematic and other form mechanism of control is used. It is known as a formal social control. That's important here. Formal means here when the codified, systematic and other form mechanism of control is used. It is known as the formal social control here. There are agency and mechanism of formal social control, for example, law and the state. That's important. The agency and mechanism of formal social control, for example, law and the state. In a modern society, formal mechanism and agency of social control are emphasized. That's important here.
informal means here, informal means is important. In every society, there is another types of social control that is known as the informal social control. That's important here. In every society, there is another types of social control that's known as the informal social control. It is a personal, unofficial, and uncodified here. That's important. There is a personal, unofficial, and uncodified here. They include a smile, making face, and body language. Fervence, criticism, and ridicules is laughter, etc. That's important. Informal means here. There can be great variation in their use within the same society. In day-to-day life, they are quite effective. And however, in there are some cases, informal methods of social control may not be adequate in enforcing conformative or obedience here. And there are various agencies of informal social control such as a family, religion, kinship, etc. That is the important informal social control here. Family, religions, kinship, etc. That's important. The next here, impact of social control. Impact of social control, that's an important point here. Social control can be both positive and negative through the question. That's important. There is a social control can be both positive and negative here. A sanctions is a mood of reward or punishment. There are sanctions is a mood of reward or punishment that is a enforces socially accepted form of behavior. There is important. There is a reward or punishment here, and a member of society can be rewarded for a good and expected behavior. The rewarded here, good and expected behavior, that's the most important impact of social control here. On the other hand, negative situations are also used to be enforce rules and the restrain deviance here. There's an important rule and to be restrained or deviance here. Let's see deviance here. The deviance is important. Deviance refers to be mood of action. The deviance refer to the moods of action which did not be conformed to be norms and value held by the most of the member of a group or society. That's important. There is a value held by the most of the members of group or society. And what is regarded as a deviant is the widely variable as a norm and values that are related to different cultures and subcultures. That's important here. Likewise, idea of deviance are challenges and the change from one period to another. You know that likewise is the ideas of deviance are challenges and the change from one period to another. For example, a woman choosing to become an astronaut. There is a woman choosing to become an astronaut and may be considered deviant at one time and be populated at the another time even the same society. That's important here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र में उपयोग शब्दावली, कल्पना एवं उनके उपयोग। कक्षा 11वीं CBSE NCERT के अंतर्गत देखा जाए तो समाज शास्त्र के हमारा ये टॉपिक है और हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। देखिए सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं समाज तभी समाज रहता है जब उसमें नियंत्रण स्थापित किया जाए। समाज तब समाज नहीं रह जाता है जब उसमें नियंत्रण न हो। तो सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य यही है कि किसी भी समाज द्वारा अपने अड़ियल या अनियंत्रित सदस्यों को वापस लाइन में लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधन से है।
कि हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं और अपना ही चलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज हर एक व्यक्तियों की महत्वपूर्ण योगदान से चलता है। अगर कुछ व्यक्तियों की योगदान गलत है, उसको अड़ियल बिहेवियर है, तो समाज को जो है कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सामाजिक नियंत्रण। देखा जाए तो यह सामाजिक प्रक्रिया, तकनीक और रणनीति है जिनके द्वारा व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि ये तकनीक है, ये एक रणनीति है, क्योंकि समाज अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारा जीवनचर्या ही बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। आज समाज में जो प्रतिमानें बदलते चले जा रहे हैं, इससे समाज के विघटन भी हो रहे हैं। कहते हैं अगर समाज में नियंत्रण न हो तो हर कोई जो है अपनी बातें चलाने लग जाएगा, और ये आज के आधुनिक युग में देखने को मिला है। तभी आप देख सकते हो कि समाज जो है काफ़ी विघटित होती चली जा रही है, क्योंकि समाज पे नियंत्रण लोग जो है खो रहे हैं। और सामाजिक नियंत्रण होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जो है हमारे समाज का अस्तित्व बना रहता है। देखा जाए तो ये व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए बल का उपयोग या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों मूल्य का लागू करना हो सकता है। देखिए, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्तियों के व्यवहार, देखिए व्यवहार जो है बच्चे भी समाज से ही सीखते हैं। जब समाज में गलत चीज़ों का अनुसरण हो रहा होगा तो बच्चे अच्छे बातों का अनुसरण किस प्रकार कर सकते हैं। और देखा जाए तो हर माता पिता, चाहे वो जैसे भी हों, अपने बच्चे को अच्छे बिहेवियर ही सिखाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि समाज में उसका नाम हो। और ये नाम तब होगा जब समाज में उनका जो है व्यवहार सामान्य हो और आप उस पर जो है सामाजिक तौर पर नियंत्रण करो, तभी समाज में जो है इनका बिहेवियर भी अच्छे रहेंगे और वो आदर्शमय भी बन के खड़े होंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक नियंत्रण के साधन। अब देखिए, सामाजिक नियंत्रण बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। अगर हम सामाजिक नियंत्रण के साधनों की बात करें तो एक अनौपचारिक हो सकता है, एक औपचारिक हो सकते हैं। अब अनौपचारिक औपचारिक क्या है, इसको हम देखें। देखा जाए तो औपचारिक साधन का में ये आता है कि जब नियंत्रण के सहितबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक तंत्र का उपयोग किया जाता है तो इसे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यानी नियंत्रण के संहिताबद्ध यानी सिस्टमैटिक व्यवस्था की जाती है, औपचारिक रूप से की जाती है, तो इसे हम जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जान सकते हैं, देख सकते हैं। देखा जाए तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों और तंत्र हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियां यहाँ कानून है। कहते हैं अगर लोगों को समाज से डर खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कानून का जो है कुछ हद तक जो है डर जरूर रहती है, और समाज भी नियंत्रण में भी कानून के नियंत्रण में ही रहती है। इसलिए औपचारिक के रूप में देखा जाए तो कानून और राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण के एजेंसियों के और तंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक तंत्र और एजेंसियों पर जोर दिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक समाज में अगर सामाजिक नियंत्रण करना है तो हमें औपचारिक तंत्र के एजेंसियों पर जोर देना पड़ेगा और उसको मजबूत और सशक्त बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है समाज नियंत्रण में रह सकता है। अगर समाज के नियंत्रण खो दिया तो समाज जो है विघटित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि समाज तभी तक समाज है जब सभी व्यक्ति समाज के रूल रेगुलेशन नियमों को पालन करते हैं, तभी तक वो समाज है। अगर रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करोगे तो वो समाज कभी समाज रहेगी नहीं और बहुत जल्द जो है विघटित भी हो जाएगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रत्येक समाज में एक अन्य प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जा सकता है। यानी एक अन्य होते हैं जिसका अपना एक अलग ही पहचान होता है। जैसे यह व्यक्तिगत होते हैं, अनौपचारिक और असंहिताबद्ध होते हैं। यानी इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसमें मुस्कुराना,
चेहरा बनाना, शारीरिक हाव भाव, भौहें चढ़ाना, आलोचना, उपहास, हंसी आदि शामिल होती हैं। ये जो है कंट्रोल करने के अनौपचारिक साधन हैं। आपको मैं समझा सकता हूँ इस बात को कि मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति जो है गलत कार्य कर रहा है समाज में, अगर उस व्यक्ति को अगर आप चिढ़ाते हो, उस पर हंसी उड़ाते हो कि तुम्हारा किया हुआ कार्य गलत है और तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति सदैव के लिए उस रास्ते को छोड़ दे, या ये भी हो सकता है कि वो उससे भी डेंजरस बन जाए। लेकिन देखा जाए तो अनौपचारिक साधन इसी तरह से देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपने कई फिल्में भी देखे होंगे जिसमें हीरो जो होता है गुंडे के रूप में होता है, और उसमें जो हीरोइंस होती है हीरोइन, वो जो होती है सिंपली फॉर्म में होती है। जब हीरोइन के कहने पर जो है हीरो जो है हर एक गलत कार्य को छोड़ देता है। उसकी मुस्कुराहट, उसको देखना, ये सारे चीज़ उसको भाता है और सारे अपराध छोड़ के वो जो है उसी के पीछे पड़ जाता है। तो देखा जाए तो इसमें हम अनौपचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मुस्कुराना हो गया, चेहरे बनाना हो गया, शारीरिक हाव भाव हो गया, भौहें चढ़ाना, आलोचना करना, उपहास उड़ाना और हंसी आदि शामिल होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण साधन है। देखा जाए तो किसी व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति का अगर सुधार हो रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और इसे हम अनौपचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं। देखा जाए तो एक ही समाज में इनके उपयोग में काफ़ी विभिन्नता भी हो सकती है, यानी एक ही समाज में इसके कई रूप भी देखने को आपको मिल सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काफ़ी प्रभावी होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में समाज नियंत्रण के अनौपचारिक तरीके अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में पर्याप्त नहीं हो सकते। जनरल सी बात है, ये तो सही है कि अनुरूपता और आज्ञाकारिता लागू करने में पर्याप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये कुछ मामलों में समाज नियंत्रण के औपचारिक तरीके हो सकती हैं। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं गलत रास्तों पे चल देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार और अच्छे बातें करने के कारण वो उस गुण चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और उससे दूर जाना चाहते हैं और समाज में एक सम्मान भरा जीवन व्यक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे काफ़ी अनौपचारिक साधन हो सकते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विभिन्न एजेंसियां भी हो सकती है, जैसे परिवार, धर्म, रिश्तेदारी आदि। परिवार में भी रह के हम अनौपचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं कि परिवार भी अपने बच्चों को सही रास्ता, मार्गदर्शन दिखा सकता है। कहते हैं धर्म भी एक ऐसा चीज़ होती है जिससे हम किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसी कुछ भी बातें नहीं कही गई है, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है कि अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है। तो इससे आप समझ जाते हो कि भाई नहीं, ये गलत चीज़ है। रिश्तेदारी, सबसे बड़ी बात होती है रिश्तेदारी। अगर आपको पता होगा कि कोई बच्चा अगर गलत करता है तो सबसे पहले रिश्तेदार ही आलोचना करते हैं, और हम यही बात कहते हैं अपने बच्चों से कि तू अगर ऐसा गलत कार्य करेगा तो हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कोई रिश्तेदार ही अपने रिश्तेदार छोड़ देंगे, तो इस कारण से हम डर भी जाते हैं और हम उस सब गलत कार्य को छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो है परिवार, धर्म, रिश्तेदारी की जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में देखे जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात देखें तो सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव भी काफ़ी देखने को मिलता है कि प्रतिबंधों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। यानी देखा जाए तो ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। मंजूरी, इनाम या सज़ा का एक तरीका भी है जो व्यवहार को सामाजिक रूप से अपेक्षित रूप से मजबूत करता है कि हमें ये डर होता है कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें सज़ा दी जाती है, अगर हम अच्छे करेंगे तो हमें इनाम दी जाएगी। तो ये भी सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे एवं विकसित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। देखिए, कोई अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो समाज ये कहती है कि व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे समाज में उसको जो है पुरस्कृत भी की जाती है, यानी रिवॉर्ड भी दी जाती है। इससे दूसरे व्यक्ति जो है देख के, समझ के अपने जो गलत कार्य करते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। तो ये सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है कि एक व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति का जो है प्रभाव बदलता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण जो है रूल रेगुलेशन हो सकते हैं।
उसके पश्चात बात करें तो दूसरी ओर नकारात्मक प्रतिबंधों का उपयोग नियमों को लागू करने और विचलन को रोकने के लिए किया जा सकता है। देखिए, जो विचलन होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और विचलन के रोकने के लिए नकारात्मक प्रतिबंधों का उपयोग जो है नियमों को लागू किया जा सकता है। अब कन्फ्यूज में आप ये हो गए कि विचलन होती क्या है, तो चलिए देखते हैं विचलन होती क्या है। देखा जाए तो विचलन काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। विचलन की क्रियाओं के तरीकों का संदर्भ करता है, यानी विचलन क्रियाओं के तरीकों को संदर्भ करता है। यानी विचलन जो होती है आपकी क्रियाओं को जो है बताता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, जो किसी समूह या समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा रखे गए मापदंडों या मूल्य के अनुरूप नहीं होते हैं। यानी हमें ये बताते हैं विचलन कि जो हमारे समाज या समूह ने जो मापदंड रखे हैं, जो मूल्य रखे हैं, क्या आप उसके अनुरूप हो, क्या उसके अनुरूप नहीं होते हो। जिसे विचलित माना जा सकता है वो उतना ही व्यापक रूप से परिवर्तनशील है जितना कि मानदंड और मूल्य में विभिन्न संस्कृति और उप संस्कृतियों को अलग करते हैं। देखिए, संस्कृति तो आपको पता ही होगा और उप संस्कृति तो आपको पता ही होगा कि दोनों बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृति और उप संस्कृति, संस्कृति जो आपकी है, उप संस्कृति जो जिसको आपने अपना लिया है। इसके अंतर्गत त्रिपान स्टडी सेंटर में वीडियो है, देख सकते हो और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ देखा जाए तो विचलित माना जाता है कि उतना ही व्यापक रूप से परिवर्तनशील होता है जितना कि मापदंड और मूल्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात देखें तो इसी तरह विभिन्न विचारों के चुनौती दी जा सकती है। यानी विचारों को विचलन के द्वारा चुनौती दी जा सकती है और वो एक अवधि से दूसरे अवधि में बदलते रहते हैं। देखा जाए तो विचलन जो है एक अवधि से दूसरे अवधि में बदलसार है, यानी बदलता ही रहता है ये। उदाहरण के लिए एक अंतरिक्ष यात्री बनने का चयन करने वाली महिला को एक समय में पथभ्रष्ट माना जा सकता है और दूसरे समय में उसी समाज में भी उसकी सराहना की जा सकती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब कोई लड़की, जब कोई महिला जीवन में बहुत ऊपर उड़ना चाहती है तो सभी समाज जो है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस प्राप्त कर लेती है, जब उस ऊंचाई पे वो पहुंच जाती है तो सभी समाज उसको सम्मान करते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो देखा जाए पहले कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, जब कोई व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा था तो समाज उसको जो है पथभ्रष्ट कह रहे थे, लेकिन जैसे उसने वो मुकाम हासिल कर लिया, लोग उसको जो है आंखों के पलकों पे रख लिया। तो ये विचलन है कि समय के साथ जो है बदलता रहता है। तो आप विचलन भी समझ गए होंगे, यानी डिफरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर था। इसी के साथ दोस्तों हमारा इतना तक टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये पॉइंट सब जो थे बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्जाम व्यू से, कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशोलॉजी सब्जेक्ट रखा हुआ है। देखा जाए तो त्रिपान सेंटर आपसे यही चाहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं दोस्तों, समझना नहीं है इतना अधिक, क्योंकि आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर में जुड़ जाइएगा तो कई सालों तक जुड़े रहिएगा, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।